Good evening. Omkar, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So there are few participants, so we'll wait for 5 minutes. Yes, I'm waiting for others to join. Shall we start? Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Okay. So good evening all. How are you all? Good evening. Fine, ma'am. Good evening, ma'am. Good. So you didn't remind me in last class, huh? I've given you some homework before that. Yes, ma'am. So who remembers? Dipali, you remember what was the homework? Yes, two vocabulary words each. Right. So how many of you have not done the homework? Yes, Neha? Yes, madam. You have given the homework regarding vocabulary. Yes, So, correct. But have you done that homework? अरे केला है कि नहीं? You can write in the chat box at least. Okay. So let us discuss one by one if you have that you have done. Who will tell me the words? Dipali?
Yes, ma'am. First word which I have got is inevitable, Inevitable. Okay. and second is bizarre. Bizarre. Very good. So what is meaning of inevitable? Inevitable means unavoidable. If some situation is which is not avoidable. Correct. So So any this word also, I sentence you can make of this inevitable word? I'll think, ma'am. Just to Okay, okay, fine, no issue. Okay. Another one was bizarre, right? bizarre. Yeah. Okay. So what is that meaning? Bizarre means it's very Weird, confusing. confusing? Yeah. Uh, Okay. Good. Very nicely put. Anybody else? Ankur? Ankur, are you there? Okay. Komal? Rahul? Vinny? Yes, Nikita? Hello. Yes, Vinny. Yeah, ma'am. You want the like what is it? This words, right? Yeah, yeah. Vocabulary words. Yes, yes, correct. Yeah, yeah. So there's a word in my mind. Assault. Assault. Yeah, assault. Okay. Mm-hmm. Assault means to like just attack someone physically or something. Correct. Yeah. We use them mostly in a physical abuse, right? The Yeah, right. person assaulted someone. You have heard this in news as well many times. Yeah, exactly. Yeah. And And another word can be snatch. Just quickly, just snatching something like taking something from someone. yeah, yeah. So taking forcibly something away Yeah, from someone. So it's a yeah, right. snatching. Absolutely right. So good, Finny. And today you spoke, right? That day I was tired of Uh, Actually, that day I had some problem with my network. That's the reason I couldn't just respond. Okay, fine. So it's great. You're Yeah, online now. yeah, thank you. Yeah. So, okay, so this is what you all are supposed to do. And please, one request, whenever I call upon your name, either you respond or write something in the chat because we are wasting our time in waiting, right? So it doesn't matter if you have not done, okay, but just respond me or write something in the chat box so that I'm not waiting and looking at the screen and waiting for your own replies, right? So these are the basic thing we should start learning, isn't it? In future you're going to need this way of behavior when you will be doing some jobs, when you will have a virtual meetings. This is a way how you have to respond. Okay, so everybody has to adapt this. Now I'll share the screen and we'll start with our class. Okay, just to revise, we started with verbal, we started with definition, then we did this activity, then we have seen the objectives, which I revised yesterday in the last lecture also. Then we have seen the elements of communication. Elements and process goes hand in hand. It is almost the same thing. So this is all the process of communication. Okay, here I've given one example in activity which explains this process. Then importance of communication in management. We have seen every point in detail that why it is needed in a management for the communication. Then in last class we started with this point. How to give a feedback to your employee as a manager, how to maintain the relationships, how to manage the conflicts, how to manage your performances of the employees and how to build a team. These were the major role that you play. Next is communication as management skills we have seen. Then we have seen all the channels, how communication goes.
राईट. आपण हे सगळे पाहिले, फॉर्मल, इनफॉर्मल, vertical, horizontal, diagonal, 360 degree, everything we have seen. And informal grapevine means gossips, how the messages are sent through gossips, sometimes how organization use it as a medium to convey certain messages. Okay, so this is how we have seen in our all these formal channels. I think we were here. I said you this is what, this is also we have discussed. Mhm. Okay, so this was a point which we are supposed to start today. Do you remember? This was the last slide I have shown you. Different types, how the grapevine, matlab gossip, how it travels. These are the different patterns जैसे grapevine travel होता है. So next is how manager can make use of grapevine communication. हे लक्षात ठेवा, कुठल्या पण गोष्टीला एक पॉझिटिव्ह ऍस्पेक्ट असतो, सॉरी निगेटिव्ह गोष्टीला पण एक पॉझिटिव्ह साईड असते. तर तुम्ही ठरवलं तर त्या गोष्टीचा अदर वेनी बेनिफिट घेऊ शकता. Right? So as a manager, how can you make use of this grapevine? Grapevine म्हणजे gossips, right? Gossips, rumors, which keeps rotating in every place, every organization. Even in your small friend circle also you see such type of thing happening. Please, who is this? Please mute it. Yes. Please, someone can suggest. Disturbing. Okay. So here we are saying how the grapevine is going to affect the or help the manager. Okay, see, it is very interesting. Okay, how manager can make use of grapevine communication. Manager should informally inform employees about organizational goals, plans, policies, etc. beside communicating them through the formal channel. This will avoid spreading of rumors and gossips. So, what is grapevine? It is the spreading of rumors and gossip. Now, what a manager can do, he can take a control of that by sitting in a informal way with all the employees and explaining them about the organization, its role, why these policies are implemented, what is the motto behind that, what are they expecting from it, so that whatever the rumors are, they are converted into a positive rumors, right? Instead of the negative rumors. Then enhance the group discussions and activities so that people openly discuss the formal and informal problems. So as a manager, you need to sit within people. हे एक लक्षात ठेवा, कुठल्या पण प्रोफेशनला नाही ह्याची गरज असते. तुम्हाला जर लोकांमधलं व्हायचंय ना, तर तुम्हाला लोकांच्या मध्ये बसायला लागतं. तेव्हा तुम्ही त्यांचे कन्सर्न्स, त्यांच्या लेवलचे प्रॉब्लेम समजू शकता. इफ यू गो अँड सेट इन युअर केबिन, then it is difficult for you to understand what problems they are facing. So you need to be around them, one of them, so that you know this. तर ह्याच्यामुळे काय होतं, जे काही ग्रेपवाईनचे रुमर्स पसरतील, आणि नॉर्मली काय असतं, I'm not happy with the organization. I'm not satisfied with the organization. Whatever the promotions are given, I don't like that. बहुत वर्कलोड है यार, बहुत काम करवाते हैं यार, यही चीजें रूमर्स होती है, यही चीजें घूमती रहती है. राइट? तो हमें इन चीजों का अदर वे से यूज करना है. सो आप ओपन डिस्कशंस रखो, आप ओपनली उनसे पूछो, आप ग्रुप्स में डिस्कशंस करवाओ कि क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, सो दैट यू कैन टैकल इट इन द राइट वे, so that negative rumors will stop spreading in the organization. Personally meet the employees and discuss various formal and informal problems. जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम है, या उनके इनफॉर्मल यानी पर्सनल कोई प्रॉब्लम्स है जो आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट नहीं करते, लेकिन उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स उनके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट करना कभी कभी हमारा काम बन जाता है एज अ मैनेजर. राइट? बिकॉज सी सपोज कोई एम्प्लॉय है जो हमेशा आता है टाइम पे, लेकिन अभी सडनली लेट आ रहा है, अभी टाइम पे नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ रीजंस होंगे. राइट? तो आपका काम है उससे कंसल्ट करना, उसकी फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको थोड़ा ब्रीदर देना, इधर गिव हिम सम हॉलीडे और गिव हिम सम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी कि ही कैन कम एट हिज टाइम एंड ही कैन वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स.
right? So this will avoid negative discussions in the organization. Decision making should be participative in nature. मतलब डिसीजन में आपका ऑटोक्रेटिक वे नहीं चाहिए कि ये मैंने डिसाइड किया है और आपको फॉलो करना है. उस टाइम आप एज अ मैनेजर अपनी पूरी टीम को इन्वॉल्व करो. आप उनको ये बोलो कि इस चीज के ऊपर हमें डिसीजन करना है. उनको इन्वॉल्व करो, उनके ओपिनियन लो. आप उनके ओपिनियन मानो मत मानो, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड फाइनली यू से दैट, बट when you are taking others opinion they feel that they are respected, their presence is respected, तो वो भी आपके डिसीजन को एकदम से हाँ बोल देते. लेकिन आपने अगर ऑर्डर छोड़ा ना तो ऑटोमेटिकली उसको अपोज होना स्टार्ट होता है. देन सम ऑफ देम विल स्टार्ट अपोजिंग. सम विल से वी डोंट लाइक दिस आइडिया, आई एम नॉट अग्रीइंग विद दिस, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस. लेकिन वही अगर उनके सजेशंस लेके आप यही बात बोलोगे तो वो सुन लेंगे. दिस इज हाउ द साइकोलॉजी वर्क्स एंड यू हैव टू कैच दैट. Regular feedback helps to improve the organizational affairs. राइट. रेगुलर फीडबैक इम्प्रूवमेंट्स के हो, प्रेज के हो, अप्रिशिएशन के हो, जो भी है वो इमीडिएटली होने चाहिए. डोंट वेट फॉर मंथ टू एंड, डोंट वेट फॉर 6 months टू एंड फिर मैं उसको सारे फीडबैक दूंगा. बिकॉज फीडबैक्स आर मोटिवेशन. रिमेंबर, वो सामने वाले को मोटिवेट करते हैं. जब आप उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं वो मोटिवेट होते हैं. जब आप उनको प्रेज करते हैं वो मोटिवेट होते हैं. उसके लिए आपको मंथ की वेट करने की जरूरत नहीं होती है. एंड व्हेन दिस थिंग्स आर डन बाय अ मैनेजर, इमेजिन यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो ग्रेप वाइन है ये पॉजिटिवली स्प्रेड होगा. तो ये जो रूमर्स है ये निगेटिव होने की जगह क्या हो जाएगी, वो उसका एक तो परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा या फिर उसमें पॉसिबिलिटी पॉजिटिव में ज्यादा हो जाएगी. मीन्स यू विल टेक केयर ऑफ दिस ग्रेप वाइन थिंग. राइट. दीज आर द सिम्पल थिंग यू हॅव टू डू. प्रॉब्लेम का होतो माहितीये, माइंडसेटचा होतो. जेव्हा तुम्हाला पोस्ट मिळते, जेव्हा तुम्हाला एक मॅनेजरल रोल मिळतो, तेव्हा बऱ्याचदा आपल्याला त्या रोलला जस्टिफाय करायला प्रॉब्लेम होतो. कारण काय होतं ते डोक्यात जातं. मी मॅनेजर आहे, माझ्या अंडर एवढी मोठी टीम आहे. मग आपल्याला बॉसी फिलिंग येतं. राईट. आपल्याला लोकांना ऑर्डर्स द्यायला आवडतात. आपण बसायचं दुसऱ्यांकडनं कामं करून घ्यायचं. मी तर खूप जणांकडनं मॅनेजर बनलं की हे करायचं हे ऐकते. Now what is difference between boss and leader? Can anybody tell me? What is difference between boss and leader? Madam, boss works as like to leader means who works with all his employees Correct. uh, to get a maximum result. Mhm. But when a boss, as per boss works to get, he don't think about the employees uh, ideas or their Okay. Leader point is correct. Boss point I couldn't hear properly. Okay. Now a But boss is someone who just gives orders and who doesn't help out. But the leader is someone who pushes us to, like just work more and just go ahead. correct. Anybody else? Any other thing? Neha, Yes, you ma'am. have a boss or you have a leader? Leader. Very good. No, you have, I'm asking. You will be, I know you will be a leader. Of course. After my communication class, you all will be a good leaders. Yes, I have a leader. Okay, very good. So, what is difference you feel? I feel that as a leader, he inspired me to innovate the things and work creatively, Mm-hmm. strive to for perfection. We can say. Correct, correct, absolutely. So, what bosses? Boss is someone who just orders. You Yeah, have to do this, you have to do that, you have to do that. और खुद कुछ नहीं करेगा. exactly. या खुद कुछ नहीं करेगा, बस दूसरों को ऑर्डर भेजेगा, ये कर वो कर वो कर. तो जब आप खुद काम नहीं करते हो ना, तब लोगों को मोटिवेशन नहीं आता है काम का. लेकिन लीडर वो होता है जो खुद भी आपके साथ काम करेगा. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 प्रोजेक्ट उसने आप लोगों में डिवाइड किए हैं, तो एक प्रोजेक्ट पे वो खुद काम करेगा. वो इजी वाला ले लेगा, लेकिन खुद कुछ काम करेगा. तो इसकी वजह से आपको लगता है यार वो भी काम कर रहा है तो मुझे भी काम करना चाहिए. अगर मेरा लीडर काम कर रहा है, मेरा बॉस काम कर रहा है, तो मुझे भी काम करना चाहिए. सो एज अ मैनेजर यू ऑलवेज रिमेम्बर दिस
कि आपका रोल सिर्फ लोगों को काम करवाना और लोगों के पीछे लगना नहीं होता है, उनके साथ रहो, राइट, यू मोटिवेट देम, उनके साथ कभी जरूरत पड़ी तो काम करो, अगर कुछ हेवी लोड है तो उनके पीछे मत भागो कि तू नाइट में बैठ, तू एक्स्ट्रा बैठ, लेकिन तू ही काम कर। इन दिस सिचुएशन यू शुड स्टेप अप एंड से कि चलो मुझे दे दो थोड़ा काम, मैं भी करता हूँ, राइट, दिस काइंड ऑफ मैनेजर इज रिस्पेक्टेड। और फिर ऐसे जब मैनेजर का बिहेवियर होता है ना, तो वहां पे ये ग्रेपवाइन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। So these are the ways how manager can tackle such kind of rumors. Actually rumors म्हणजे पॉइंट काय माहितीये का, ऑर्गेनाइजेशन में निगेटिविटी जो आती है, और वो निगेटिविटी इतनी फास्ट स्प्रेड होती है, पता है, कि वो एक दूसरे को कनेक्ट करती है, एंड इट जस्ट स्प्रेड्स लाइक एन फायर, कि पता ही नहीं चलता कब सारा एनवायरनमेंट निगेटिव हो गया। तब ये मैनेजर्स के ऊपर, टीम लीड्स का रोल होता है कि वो पॉजिटिविटी रखे, सो दे हैव टू ऑलवेज बी विद इन वन ऑफ देम, तभी वो होता है, नहीं तो नहीं होता है। अगर आप इसमें बैठेंगे ना तो नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट इन योर सिलेबस आफ्टर दिस इज डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो डायमेंशन इज ऑलमोस्ट सेम लाइक अ चैनल, राइट, जैसे प्रोसेस और एलिमेंट्स वाज गोइंग हैंड इन हैंड, वैसे ही चैनल्स एंड डायमेंशंस आल्सो गोज हैंड इन हैंड। सो योर सिलेबस टू स्टडी इज वेरी इजी, राइट, काफी चीजें रिपीट हो रही है, सिर्फ उन्होंने टाइटल चेंज किया हुआ है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है और आपको आंसर आराम से लिख पाओगे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के। सो जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ओके। डायमेंशंस अगेन द सेम, हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लोज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उसको डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो यही है, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, क्रॉसवाइज या 360 डिग्री। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल दिस थिंग, मैंने सिर्फ यहाँ पे एक फिगर डाला हुआ है। दिस इज हाउ इट गोज। अपवर्ड, ये सॉरी, डाउनवर्ड मतलब टॉप मैनेजर से नीचे के फर्स्ट लाइन मैनेजर्स तक या फिर उसके नीचे वाले एम्प्लॉयज तक। अपवर्ड यानी इनसे ऊपर तक, टॉप मैनेजर तक, जैसे कंसर्न्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चीजें उनको चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए सिस्टम में, तो ये सारे नीचे से ऊपर तक कन्वे होते हैं। अगर कुछ न्यू रूल सेट करने हैं, अगर कुछ नए ऑर्डर्स निकालने हैं या कुछ नया चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, तो ये सारा टॉप से नीचे तक आता है, इट गोज दैट वे। डायगोनल यानी इट गोज लाइक दिस, एंड क्रॉस जाता है मतलब डायरेक्टली यहाँ से वहां मिडिल तक जाएगा या मिडिल से डायरेक्टली टॉप तक जाएगा। एंड देन नेक्स्ट इज 360, ये जो मैंने आपको फीडबैक के लिए बोला था कि जब भी आपका एचआर का ये नॉर्मली टूल होता है कंपनी में, कि वो कभी भी आपके प्रमोशंस के लिए, अपने इंक्रीमेंट के लिए किसी एक से नहीं पूछेंगे, वो ऐसे 360 डिग्री आपका पूरा ये निकालते हैं, रिव्यू निकालते हैं कि आप कैसे हो, राइट, क्योंकि कभी कभी आप मैनेजर के फेवर वाले हो सकते हो, समटाइम्स मैनेजर लाइक्स यू, समटाइम ही लाइक यू एज अ पर्सन, और यू हैव अ गुड फ्रेंडशिप, और यू आर गुड फ्रेंड्स एक्चुअली, तो वो अच्छा ही बोलने वाला है। तो वो आपके हॉरिजॉन्टल कॉलीग से भी पूछते हैं, वो आपके अंडर के लोगों से भी पूछते हैं, वो अगर आप क्लाइंट से बात करते हो तो क्लाइंट से भी फीडबैक लेते हैं, और इस तरीके से आपका 360 डिग्री में फीडबैक जाता है फॉर प्रमोशंस। So remember this. So these are all ways organization work. So कोई कभी भी किसी एक के कहने पे कभी किसी को प्रमोट या ये नहीं करते हैं, मतलब उसके लिए बैड या गुड या बैड इंप्रेशन नहीं रखते. It is collected in all the direction, and this is mostly an HR tool. So these are the dimensions of communication. So communication organization में ऐसे पूरी तरह से it moves. This is how the communication is done. So this was all the basic of communication. जो पहला टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, व्हाट इज बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये सारा है, डेफिनेशन, प्रोसेस, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या है और उसके डायमेंशंस क्या है, ये सारी चीजें उसमें बेसिक में आती है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, सो एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन? Communication which is done using written format or oral format. Yes, written or oral format. Very good. Anybody else? Mayura?
Yes, ma'am. Do you know what verbal communication is? Speak up, मराठीत सांग. No problem. Okay, so let's see. Verbal communication refers to the production of spoken language to send an intentional message to a listener. म्हणजे काय? आता मी जे करते ते. ओके, आता तर तुम्हाला ना माझी बॉडी लँग्वेज दिसत आहे ना, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन कळते, फक्त काय ऐकू येत आहेत? शब्द. बरोबर, शब्द आणि टोन माझ्या बोलण्याचा. अँड दॅट इज द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन वी आर डुईंग ऑन द व्हर्च्युअल मोड, isn't it? So verbal communication is you want to communicate through verbally speaking, through using a language, through using a words, through using different sentences. That is how you are trying to communicate the whatever the message you want to say. ओके, आता वर्बल कम्युनिकेशन मध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय काय असतं बघा. सगळ्यात पहिलं असतं वर्ड्स. चूजिंग राईट वर्ड्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन वर्बल कम्युनिकेशन. करेक्ट वर्ड आपल्याला आला पाहिजे. कम्युनिकेशन कसं पाहिजे? आयडियली कम्युनिकेशन आपल्याला कन्साइज करायला लागतं, म्हणजे शॉर्ट मध्ये. काहींना सवय असते बघा, एखादा टॉपिक बोलायला लागलं ना की शॉर्ट मध्ये बोलणारच नाही, त्याचं बॅकग्राऊंड क्रिएट करतात ते. आय डोंट नो इफ यू हॅव कम अक्रॉस दिस पीपल ऑर नॉट, बट आय कम अक्रॉस ऑल द टाइम. खूप कमी लोकांना माहितीये की टू द पॉइंट आणि शॉर्ट बोलायचं असतं. ते असं सांगतात, एखाद्याला म्हटलं ना की काय झालं रे, तुला काही प्रॉब्लेम झाला होता का, आज लेट का झाला, तर ते लेट का झाला डिरेक्टली सांगणार नाही. अरे काय झालं माहिती का तुला, मी आज निघालो घरातनं सकाळी आणि आलो रोडवरती येता येता मला तो एक काका भेटले, त्यांच्याशी गप्पा मारल्या आणि मग निघालो. मग निघताना मला पहिल्यांदा एक हे आडवं गेलं, मला वाटलं पडलो मी आता, पण मी पडलो नाही. मग नंतर माझी गाडी पंक्चर झाली. मग काय आलं, माझी गाडी पंक्चर झाली. म्हणजे प्रॉब्लेम काय होता, ती गाडी पंक्चर होणं हा प्रॉब्लेम होता, पण ते सांगायला आधी बॅकग्राऊंड क्रिएट केला. दिस इज ऑल अ रॉंग वे ऑफ कम्युनिकेशन. आणि हे जर फीडबॅक्स तुम्हाला मिळत असतील ना मित्रांकडनं, तुमच्या घरच्यांकडनं, की किती बोलताय, किती बोलतोस, किती बोलते ग, पटकन सांग ना काय सांगायचं, तर त्याची प्रॅक्टिस सुरू करा. कारण आपल्याला कन्साइज आणि टू द पॉइंट बोलता आलं पाहिजे. त्याचं कारण आहे, समोरच्याची लिसनिंग कपॅसिटी खूप कमी असते. अ पर्सन हु इज लिसनिंग व्हाट यू आर सेइंग, उसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है. वो कुछ टाइम तक ही कॉन्सेंट्रेट करता है. ये एक्चुअली फिजियोलॉजी है हमारी, राइट? ये ब्रेन की सिस्टम ही वैसी है. वो कुछ टाइम तक ही कॉन्सेंट्रेटेड सुनेगा, उसके बाद ना हिज माइंड स्टार्ट्स वॉन्डरिंग, ही इज थिंकिंग समथिंग एल्स. वो तब आपकी बात नहीं सुनता है. अभी जब बीच में मैं आपको क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, राइट, बीच में कुछ जोक्स नहीं करेंगे, क्लासरूम में भी अगर हम जोक्स नहीं करेंगे, हम किसी के ऊपर कुछ टॉन्ट नहीं मारेंगे, तो क्या हो जाएगा पता है, जब मोनोटोनस क्लास होता है ना, तब आपका ध्यान थोड़ी देर बाद कहीं और घूमने लगता है. 14 को वैलेंटाइन है, राइट, अब मुझे क्या गिफ्ट देना चाहिए, राइट, आज कौन सा डे है, आज हक डे है ना, हक डे है, राइट, तो मैंने आज हक किया ही नहीं यार, कल तो ये हो गया, चॉकलेट डे हो गया, मैंने तो चॉकलेट दिया ही नहीं यार. योर माइंड स्टार्ट्स इनटू ऑल दोज वर्ल्ड. और यहाँ मैम बोल रही है वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन कहीं और कनेक्ट हो गया है. Isn't it? So this is how it happens with everybody, not only you, it happens with everybody. So you need to bring people back. So इससे अच्छा है कि आप कंसाइज बोल दो, फटाक से अपना जो इम्पोर्टेंट है वो बोल दो, उसके बाद आप जो ज्यादा बोलना है वो बोलते रहो, क्योंकि सामने वाला ज्यादा सुनने वाला है नहीं. ओके, सो वर्बल कम्युनिकेशन का ये एक काइंड ऑफ मंत्र है जो आपको याद रखना है. You have to remember this. Always learn to speak concise, यानी short में, और to the point. Directly come to the point. Don't create that background scenarios before you start and coming to the point. तब तक कोई सुनता ही नहीं है. And what are the important aspects? First, choosing right words. Correct words choose करना है हमें. राइट, मतलब जो अप्रोप्रिएट है वहां बोलने के लिए, वैसे ही वर्ड्स चुनने हैं. दूसरा, आपका टोनिंग.
आपके टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एरोगेंटली बात कर रहे हो, आप रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो, आप रूडली बोल रहे हो. ये सारी चीजें सिर्फ आपका टोन पे समझ में आती है. सो टोनिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. एकच सेंटेन्स टोन बदलला की मिनिंग कसं बदलतं, राईट? फॉर एक्झाम्पल, आता मी होमवर्क दिला होता तुम्हाला. आय एम आस्किंग यू, होमवर्क कोणी कोणी नाही केला? ओके, कोणीच केला नाही. मग मी म्हणतेय की का नाही केला होमवर्क, असं मी विचारते. नंतर का नाही केला होमवर्क, ओके, टोन चेंज झाला माझा. होमवर्क का केला नाही कोणीच, आता टोन चेंज झाला माझा. टोन पण चेंज झाला आणि व्हॉल्यूम पण वाढला. आता पहिलं जेव्हा मी म्हंटल की का नाही केला होमवर्क, तर कदाचित तुमच्यातले 4 जण मला रिप्लाय लिहितील की मॅम असं झालं होतं, मॅम तसं झालं होतं, किंवा मॅम विसरलो, जस्ट फॉरगॉट, राईट? सेकंड टोनिंगला थोडं घाबराल आणि थर्ड टोनिंगला तर मला कोण रेस्पॉन्सच देणार नाही. त्यात व्हर्च्युअल असल्याचा फायदा घेता तुम्ही. अजून आपली ओळख नाही, त्याच्यामुळे मस्त कोणी रिप्लायच लिहित नाही, बसा ओरडत तिकडे मॅडम तुम्ही, राईट? सो टोनिंग, तुमचं वर्डचं चॉईस, तुमचं व्हॉल्यूम, तुमचं रेट ऑफ स्पीच, पॉज, वोकॅबलरी, प्रोनाउन्सिएशन आणि वर्ड स्ट्रेस. वर्ड स्ट्रेस म्हणजे जेव्हा आपण बोलतो ना, तर एखादी गोष्ट जेव्हा महत्वाची असते तेव्हा त्या पर्टिक्युलर इम्पॉर्टंट वर्ड वरती आपण स्ट्रेस द्यायचा असतो. लाईक फॉर एक्झाम्पल, verbal communication refers to the production of spoken language. This is a language that we spoke. So language वर जेव्हा मी स्ट्रेस करते ना, तेव्हा तुम्हाला त्या लँग्वेज वर्डचा इम्पॉर्टन्स कळतो. Getting my point? So this is how you have to develop your communication. Toning should be always right. खूप हळू बोलणं, खूप जोरात बोलणं, खूपच दबल्यासारखं बोलणं, खूप ओव्हर कॉन्फिडेंट बोलणं, हे सगळ्या गोष्टी तुमच्या टोन मधनं रिफ्लेक्ट होतात. आणि पीपल स्टार्ट जजिंग यू बाय दॅट. सो कम्युनिकेशनला ना हे खूप ऍस्पेक्ट्स असतात. ते सोडा, इंग्लिशचं सोडा, तुम्ही तुमच्या मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये, या आपकी मदर टंग में भी अगर आप डिफरेंट टोन्स में बात करते हो तो सामने वाला आपको जज करता है. रूड इंसान है यार, ठीक से बात तक नहीं करता है. आते हैं ना फीडबैक, आप खुद दिए होगे फीडबैक ऐसे कितने लोगों को. सो वर्बल कम्युनिकेशन में ये सबसे, बाकी सब थियोरटिकली याद रखो. Other whatever we are going to see is more theoretical. This is something you have to work upon. अगर आपका टोनिंग गलत है, टोनिंग चेंज कर दो. इट शुड बी मोर इनटू अ रिस्पेक्टेबल वे, राइट? तो आपकी बातें रिस्पेक्टेबल लगनी चाहिए, एरोगेंट नहीं दूसरों को. ओके, देन वॉल्यूम प्रॉपर होना चाहिए. जहां रिक्वायर्ड है वहां वॉल्यूम बढ़ा रखो, अदरवाइज कीप इन अ नॉर्मल पेस. अननेसेसरी वॉल्यूम इंक्रीज से भी ऐसे लगता है कि दूसरों के ऊपर आप चिल्ला रहे हो या फिर आप अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हो. सो देयर कुड बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ दैट. रेट ऑफ स्पीच, whenever you are conversing in English or you are trying to speak in English, always control your rate of speech. Many of my students I see that they are trying to speak in English ना, तो वो स्पीड पकड़ते, जस्ट जल्दी से खत्म कर देना है मुझे जो भी मुझे बात करनी है, राइट? एंड दे जस्ट कैच द स्पीड. तो ये रेट ऑफ स्पीड से ना, स्पीच से क्या होता है पता है? दिस विल नॉट मेक अदर टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. आप यूके वाले लोगों के वीडियोस सुनो, उनका इंग्लिश एकदम शांति से बोलते हैं वो लोग, काम एंड कंपोज्ड होता है. So that is a sign of having a good command on the language, and not speaking very fast means you have a good command on the language. Sometimes it is considered as you are trying to hide your mistakes by just running with the speed of the communication. ये ऐसे लोग इंटरप्रेट करते हैं ऐसी चीजों को. पॉज, पॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरी एक क्लास में एक्टिविटी में मैंने देखा था. मैंने बच्चों को एक एक्टिविटी दी थी कि उनको स्किट करने थे क्लासरूम में, ओके? और एक बैच के बच्चों ने हेयर ऑयल की एडवर्टाइजमेंट का स्किट चूज किया था. तो उन्होंने, एडवर्टाइजमेंट ऐसा था उनका कि 2 बच्चे बैठेंगे, वो टीवी ऑन करते हैं और फिर टीवी पे एड आती है. तो एड में जो बच्चा खड़ा हो गया, उसने अपने हाथ में हेयर ऑयल की एक बॉटल लाई थी घर से, वो हाथ में रखी थी, एंड ही इज सेइंग कि डू यू हैव प्रॉब्लम विद द हेयर्स, सो वी हैव अ सॉल्यूशन. ऐसे करके उसने वो बॉटल ऊपर उठा के दिखाई, ओके? और फिर बोलता है कि दिस इज अ ऑयल विच कैन रिमूव ऑल योर हेयर्स.
ओके, ये बोला और पॉज लिया, पूरा क्लास बर्स्ट इन लाफिंग, दिस विल रिमूव ऑल योर हेयर, ये बोला वो, और पॉज लिया उसने, सब हंस पड़े, सब हंस पड़े। उसके बाद वो कुछ बोला, कुछ समझ में नहीं आया किसी को, और फिर सब शांत हुए, फिर ये बोलता है एंड दिस इज फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। फिर से क्लास जोर जोर से हंसने लगा। तो फाइनली आई आस्क्ड, इज इट हेयर ग्रोइंग ऑयल और इट इज अ हेयर रिमूवल ऑयल? मैंने उसको डायरेक्टली पूछा, तो वो बोला नहीं मैम हेयर ग्रोइंग ऑयल है। तो आई सेड देन व्हाई आर यू सेइंग इन दिस वे? तो फिर क्लास जोर जोर से हंस रहा है। फिर मैंने सबको शांत किया, इसको बोला तू फिर से एक बार कर। फिर उसने किया, तो फिर उसने पहले वाला सेंटेंस बोला कि दिस इज ऑयल विच विल रिमूव योर और हेयर प्रॉब्लम्स। इस गधे ने प्रॉब्लम से पहले पॉज लिया। तो मैंने उसको पूछा भाई ये राइट जगह है क्या पॉज लेने की? तो ही इज टेलिंग मी मैम आई वांटेड टू क्रिएट द क्यूरोसिटी, I want to make everybody curious about it. That is why I took pause there. Now see the sensibility. Is it a right place to take the pause? Right? So pause कहाँ लेना है ये समझ में आना चाहिए, नहीं तो कभी कभी मीनिंग चेंज हो जाता है। पॉज यानी क्या पता है? जब हम राइटिंग वर्क करते हैं तब सेंटेंस में जो फुल स्टॉप देते हैं, दैट इज अ पॉज। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग यू शुड आल्सो स्पीक विद द पॉज। जब भी बात करोगे एक सेंटेंस के बाद रुको, फ्यू सेकंड्स रुको, और देन कंटिन्यू योर सेंटेंस। just go, don't go on speaking without taking any pause। सामने वाले को समझता ही नहीं, वो जब तक पहली वाली चीज अपने दिमाग में जा रही है उसके आप दूसरी बोल देते। टेक अ पॉज, इट शोज योर कॉन्फिडेंस। आपको इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, ये सब चीजें आपको तब लगेगी, राइट? सो दिस इज हाउ अ पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। अभी मैंने आपको दिए हैं वो वर्ड्स दिए हैं कि वोकैबुलरी के, कि आप नए नए वर्ड्स ला, बिजारे सीखे हमने, फिर असॉल्ट सीखा हमने, फिर और फिनी और इसने बोला था दीपाली ने, राइट? सो आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एवरीबडी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंक्रीज योर वोकैब, राइट? अभी ये जो वर्ड्स इन्होंने पता है, ये अगर आप कम्युनिकेशन में यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल असॉल्ट वर्ड है जो फिनी ने बोला, अगर आपको असॉल्ट ये राइट वर्ड पता नहीं है तो आप सेंटेंस को क्या बोलोगे? दैट बॉय इज नॉट बिहेविंग गुड विद दैट गर्ल, और दैट बॉय इज ट्रबलिंग दैट गर्ल, और ही इज ट्राइंग टू टच हियर एंड देयर टू हर। अब क्या कर रहे हो आप? उस सेंटेंस को अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन मोड पे लेके जा रहे हो। वहीं अगर आपको राइट वर्ड पता है तो व्हाट यू विल से, दिस बॉय ऑलवेज असॉल्ट दैट गर्ल। अब आप सुन के बताओ कि कौन सा वाला इंप्रेसिव लगता है, दिस बॉय इज ऑलवेज असॉल्टिंग दैट गर्ल, या फिर दिस बॉय इज ऑलवेज ट्रबलिंग दैट गर्ल, दिस बॉय इज ऑलवेज ट्राइंग टू टच हियर एंड देयर। आप ही समझो कि एक एमबीए स्टूडेंट जो कम्युनिकेशन में अच्छा है, उसकी लैंग्वेज असॉल्ट वर्ड की चाहिए या ये वाली चाहिए? आ रहा है समझ में? एंड दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, ब्रिंग द वोकैबुलरी वर्ड्स। जब भी आप ये वोकैबुलरी वर्ड्स कलेक्ट करोगे, आपको उसका अल्टरनेटिव वर्ड मिलेगा जो आप यूज करके वो सेंटेंस को कंसाइज और स्पेसिफिक बना सकते हो। एंड दिस रियली मेक्स अ गुड इम्प्रेशन। सच में बहुत इम्प्रेशन आता है अच्छा, राइट? सो सच में ये प्रैक्टिस करो। आपके पास अभी 2 साल और है कोर्स खत्म होने तक, तब तक आपकी वोकैबुलरी कितनी बढ़ जाएगी, इमेजिन। Imagine how good you will start speaking in English with the appropriate words, with the correct words, with the correct pronunciations. Remember, see, it is going to help for you. और जिनको आता है ना, वो लोग भी कॉम्प्लेक्स में मत रहो। Try to make it more fluent. Try to make it more, with better and better words. So that you can. शशि थरूर को सुना है कभी? समझता है कुछ? कुछ नहीं समझता वो जब भी बात करता है तब। पूरी वो डिक्शनरी लेके बैठ जाता है। एक बार मैंने एक इंटरव्यू देखा था शशि थरूर एंड अपनी ये इन्फोसिस के, उनकी वाइफ का नाम क्या है रे? एनीबॉडी? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, वेरी गुड। सो सुधा मूर्ति जी और इनका इंटरव्यू चल रहा था। सुधा मूर्ति जी का एक बुक पब्लिश होने वाला था, तो वो उस टाइम एंकरिंग के लिए ये था शशि थरूर। तो सुधा मूर्ति उसको देख के थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, एंड सुधा मूर्ति सेड कि ओ गॉड शशि, यू आर हियर। तो वो बोली, सी, मेरी बुक की लैंग्वेज तुम्हें बहुत सिंपल और कीडिंग लगेगी क्योंकि मेरे बुक्स तो बच्चे भी पढ़ते,
Even students can read my book, right? So please don't make fun of that. उन्होंने ऐसे ही पहले ही वो defensive mode में चली गई थी. And then Shashi said, and she says, Shashi, I keep hearing your speeches, but really, shall I say one thing? वो सबके सामने बोली, I should confess one thing, कि whenever I'm here listening to your speech, I have to take a dictionary and sit. Because half of the speech I don't understand because so tough words you are using. अभी हमें शशि थरूर नहीं बनना है, ये भी बात आप समझ लो. क्योंकि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो वो चीज सामने वाले को समझ में आनी चाहिए. यू आर नॉट सेइंग बिकॉज यू वांट टू इम्प्रेस एंड जस्ट यूज डिफिकल्ट वर्ड्स एंड थिसॉरस वर्ड्स टू जस्ट मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड. आपका ये भी तो उसके पीछे मोटो है कि जो भी आप बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए. लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर वर्ड्स यूज करते हो, अगर आप थोड़े और अच्छे वर्ड्स यूज करते हो तो आपका लैंग्वेज इम्प्रेसिव बन जाता है. इट लुक्स वेरी इम्प्रेसिव, right? And this is how the MBA students are. You know, their speech, their communication is always like their personalities are par excellence पे होते हैं वो लोग. तो अपने आप को ग्रूम करो उस हिसाब से. बहुत टाइम है आपके पास, आराम से ग्रूम हो जाओगे आप. सो वोकैबुलरी इज यूजिंग द राइट वर्ड्स. सॉरी, अभी इसमें एक दो मैंने डाला है, डिनोटेटिव एंड कोनोटेटिव. ओके, 1 मिनट. इसका मतलब है कि हम लोग कभी कभी अलग चीज है, मतलब कुछ वर्ड्स को ना एक निगेटिव मीनिंग्स होते हैं, तो हम लोग वो वर्ड्स को यूज करना वोकेबलरी में अवॉइड करेंगे. फॉर एग्जांपल जुवेनाइल, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड जुवेनाइल? जस्ट यहाँ पे चैट में डाल दो, मी यस 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 करके कुछ. यहाँ पे मुझे दिखता ही नहीं है. दिखा. Good. Okay. So, Fini, what is juvenile? And someone who's under 18. Under 18, right. But could you tell me, when you hear or listen this word, what things strikes to your mind first? Someone who's young enough, someone who can't be considered as an adult. Okay, adult, but don't you think it is more related to something like crime? Crime, It is exactly. very, yeah, it is commonly used to specify that the criminal was juvenile, so that is why he was not sentenced for any crime. He was Yeah, sent exactly. to Otherwise, it is usually, like this a kid who is under 18, a child who is under 18 is often said like called as a young child or something like that. Absolutely. So Yeah. actually, as per the word, the meaning of juvenile is that, right? Juvenile म्हणजे who is under 18. पण त्याला इतकं ह्याच्यासाठी यूज केलं गेलंय की इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर दिस पर्पस कि क्रिमिनल के लिए यूज किया गया है वो, कि ये जुवेनाइल था इसलिए उसको ये नहीं किया और उसको रिहेबिलिटेशन में भेज दिया, वो सुधारक गृह में भेज दिया एंड ऑल दोस थिंग. सो अभी जुवेनाइल वर्ड आप किसी के मुंह से अदरवाइज नहीं सुनोगे. It is not that commonly used. So sometimes avoid using such words which has already got some negative sentiments to it. Right? So this will create some negative things to your communication. So वही है उसमें vocabulary में मैंने डाला हुआ. Next is pronunciations. Okay? Like for example इसमें और एक है vocabulary में fat और overweight. Okay? अगर आप overweight person को like if you are saying कि कोई overweight है, what healthy, okay, so हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं कि कोई अगर आपके यहाँ पे कोई मोटा है, आपके ग्रुप में अभी कोई तो कोई होगा ही, राइट? अगर कोई मोटा है तो आप लोग क्या बोलते हैं? हेल्दी है ये. मोस्टली व्हाट वी डू, वी से इट हेल्दी. लेकिन आप उसको बोलोगे फैट है, ओवरवेट है, तो ये चीजें उसको बुरी लगेगी. बिकॉज फैट एंड ओवरवेट वर्ड आर हैविंग सम नेगेटिव सेंटिमेंट्स. दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड फीडबैक फॉर समवन. तो उसकी जगह आप हेल्दी बोल दो, राइट? तू तो अच्छा हेल्दी है भाई,
तुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसकी जगह अगर ए मोटे बोला तो उसको बुरा लगेगा, राइट? तू तो जाड़ा है ऐसे बोला तो उसको बुरा लगेगा. सो चूज योर वर्ड्स प्रॉपरली. सो वोकेबलरी में जब आप बात करते हो तो ऐसे वर्ड्स डालने की कोशिश करो जिनको पॉजिटिविटी है, निगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं है. ओके, ट्राई टू वर्क ऑन दैट. Pronunciations is very important aspect of your communication. If you pronounce the words in a wrong way, the it creates a bad impression of your communication. अगर किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको पता नहीं है, अगर कोई नया वर्ड है, तो अपना दिमाग लगाने से बेटर है गूगल पे जाओ, वहां पे वो टाइप करो और वहां पे एक साइन आती है इसकी स्पीकर की, उस पर क्लिक किया तो आपको वो वर्ड सुनाता है कि हाउ इट इज प्रोनाउंस्ड. ओके, एंड दैट इज अ राइट वे टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. क्योंकि हम अगर कभी कभी कुछ है जो स्पेलिंग की जैसे स्पेल नहीं होते हैं, कुछ कुछ इसमें कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, तो उसको उस टाइप से प्रोनाउंस नहीं करते हैं. ओके, नाउ समबडी टेल मी, जो सुबह का नाश्ता करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आई विल आस्क ओनली, वो लोग बोलेंगे. अभिषेक. Breakfast. ओके, ब्रेकफास्ट. मयुरा. Yes, ma'am. काय म्हणतात सकाळी जो नाश्ता करतो त्याला? ए बाई, एवढा वेळ लावण्यासारखं काही नाहीये त्याच्यात. Yes, ma'am. अगं सकाळी नाश्ता करतो त्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? Ma'am, परत सांगा ना. आपण सकाळी नाश्ता करतो की नाही? हो. हा, मग त्याला इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? ब्रेकफास्ट मॅम. ओके, गुड. ओमकार. Yes, काय म्हणतात त्याला? breakfast. ब्रेकफास्ट. एव्हरीबडी. Okay. Now, whenever you say a breakfast, it is spelled as a breakfast. त्याचं स्पेलिंग वजा बोलायला गेलं तर FAST फास्टच आहे. पण जेव्हा ते प्रोनाउन्स होतं तेव्हा त्याला ब्रेकफास्ट म्हणतो. काय म्हणतो? द करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन इज ब्रेकफास्ट. FU प्रोनाउन्स होतो, ब्रेकफास्ट. आलं लक्षात? सो लेट्स गो फॉर ब्रेकफास्ट अँड नॉट ब्रेकफास्ट. काय उपवास सोडायचा आहे का आपल्याला? ब्रेक फास्ट. ओके, सो इट शुड बी ब्रेकफास्ट. सो हे नाश्त्याचं प्रोनाउन्सिएशन झालं. आता भाज्या आणतो मार्केटमधनं, त्याला काय म्हणतो आपण? भाज्या आणतो ना आपण दुकानात जाऊन वगैरे, सो त्याला काय म्हणतो? व्हेजिटेबल्स. एक व्हेजिटेबल्स. संतोष. शुभदा. ऋतुजा. Veggies. जीज. ओके, शॉर्टकट मारून मोकळी झाली. Yeah. म्हणजे चुकायलाच नको मॅडम. स्मार्ट. ओके, चैतन्य. व्हेजिटेबल्स. ओके, सो मेजॉरिटी लोक काय म्हणतात? व्हेजिटेबल, कारण VEGE त्याचं स्पेलिंग आहे. पण त्याच्यात जो दुसरा ई येतो ना तो सायलेंट असतो, म्हणून त्याचं प्रोनाउन्सिएशन असतं व्हेजिटेबल्स. काय असतं? व्हेजिटेबल्स. इट इज व्हेजिटेबल्स, नॉट व्हेजिटेबल्स. ब्रेकफास्ट नाही, ब्रेकफास्ट. फर्स्ट, ब्रेकफास्ट. ओके, सो हे जे आपल्या डेली लाईफचे वर्ड्स असतात ना त्याची प्रॅक्टिस सुरू करा तुम्ही आजपासून. की तुम्ही इंग्लिश कॉन्व्हर्सेशन करताना यू हॅव टू फोकस की तुम्ही ते डेली प्रॅक्टिसचे वर्ड्स करेक्टली वापरताय की नाही. एक मिनिट. ओके, सो दिस इज. आता हे दुसरा वर्ड आहे कम्फर्टेबल. आपण कम्फर्टेबल म्हणतो, कम्फर्टेबल. इट इज कम्फर्टेबल. ओ सायलेंट आहे. कम्फर्टेबल. ओ प्रोनाउन्सच होत नाही त्याच्यात. कम्फर्टेबल. कम्फर्टेबल नाही, कम्फर्टेबल. बदाम. बदामाला सगळे सगळे काय म्हणतात माहिती? आल्मंड. आल्मंड, आल्मंड. इट इज प्रोनाउन्स्ड ॲज आल्मंड. एल सायलेंट आहे. तुम्ही कुठल्याही
चांगल्या इंग्लिश बोलणाऱ्या व्यक्तीला बघा ते आल्मंड म्हणणार नाही, दे विल से आमंड. हा वुड, वुल्ड म्हणतो का आपण, वुल्ड, टाक, टाल्क म्हणतो का, TALK म्हणून टाल्क म्हणतो का, नाही, टाक, एल सायलेंट आहे की नाही, तसंच आहे. ऑफन आणि ऑफ्टन हे दोन्ही प्रोनाउन्सिएशन करेक्ट आहे. इट इज UK and US बेस्ड प्रोनाउन्सिएशन. बाहेरच्या लोकांना जर तुम्ही ऐकलं ना तर दे विल ऑलवेज से ऑफ्टन, ऑफ्टन. ते ऑफन नाही म्हणत, ऑफ्टन म्हणतात. ओके. हे कॅपॅसिटी, कॅपॅसिटी म्हणतात सगळे. इट इज कपॅसिटी, कपॅसिटी. हे एक सांगा बरं, त्याच्या खालचा वर्ड. entrepreneur, करेक्ट. लोक, अरे मेजॉरिटी लोक जे स्वतः ऑन्टरप्रिनर आहेत ते स्वतः त्याला एंटरप्रिनर म्हणतात. एंटरप्रिनर, 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 एंटरप्रिनियर. बापरे, मी म्हणते तुम्ही स्वतः आहात ते, तरी सुद्धा मोठ्या मोठ्या लेवलची लोक सुद्धा मी एंटरप्रिनियर, एंटरप्रिनर म्हणताना ऐकलेले. इट इज नो वे एंटर, इट इज entrepreneur. Right? The correct pronunciation is entrepreneur. This is how you have to pronounce it. ब्रेकफास्टच्या खालचं सांगा बरं काय म्हणता. खाली आहे का स्वीट डिश कधी बाहेर, त्याला काय प्रोनाउन्स करा. Desert. एनिबडी एल्स. शेक. Desert. डेझर्ट. ओके, desert, व्हेरी गुड. कोण होत आहे. ऋतुजा पाटील, तुझ्या, तू आगाव आहेस, थांब जरा. ओके. सो डेझर्ट म्हणजे वाळवंट, माहितीये ना सगळ्यांना. तर स्पेलिंग जरी सेम असलं तर वाळवंट म्हणायचं तर त्याचं प्रोनाउन्सिएशन डेझर्ट होतं. पण जेव्हा ती स्वीट डिश म्हणून म्हणायचं असतं तेव्हा त्याचं प्रोनाउन्सिएशन डिझर्ट होतं. डिझर्ट. सो इट इज प्रोनाउन्स्ड ॲज डिझर्ट अँड नॉट डेझर्ट. कुठल्या चांगल्या रेस्टॉरंटला गेला तुम्ही कधी, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टारला, तर तिथे तुम्हाला वाढणारे बऱ्यापैकी सगळ्या ठिकाणी हॉटेल मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएट्स असतात. अँड दे नो ऑल दिस प्रोनाउन्सिएशन्स इन अ करेक्ट वे. सो तिथे जाऊन उगाचच डेझर्ट म्हणू नका. ते विचारतील तुम्हाला, सहारा डेझर्ट देऊ का, हे डेझर्ट देऊ का, ते डेझर्ट देऊ, काय पाहिजे सांगा म्हणून. राईट. यू हॅव टू प्रोनाउन्स इट ॲट डिझर्ट. सो कधी पण त्याला डिझर्ट म्हणा. नाव स्टार्ट करेक्टिंग दिस वर्ड्स. मी मुद्दामून आपले रेग्युलर लागणारे शब्द इथे यूज केलेत, सो दॅट दिस विल गिव्ह यू द प्रॅक्टिस अँड इट विल ट्रेन युअर ब्रेन that you are thinking about the pronunciation before you are pronouncing some different word. Right? Even pronunciation हा असं बोललं जातं, म्हणजे प्रोनाउन्स्ड मध्ये ओ येतो पण प्रोनाउन्सिएशन असतं, प्रोनाउन्सिएशन नसतं. ते सुद्धा लोक चुकीचं बोलतात. अरे प्रोनाउन्सिएशनच तुला येत नाही असं म्हणतात. प्रोनाउन्सिएशन, इट इज प्रोनाउन्सिएशन. राईट. तिथूनच चूक करायला सुरुवात होते लोकांची. आता बीइंग अ MBA स्टुडंट, ह्या गोष्टींवर तुमच्या कमांड पाहिजे, लक्षात ठेवा. तेव्हा तुम्ही असे एक इम्पॅक्टफुल आणि इम्प्रेसिव्ह वाटता. तुम्ही लोक ना असे इतरांपेक्षा स्टँड आउट करता बाहेर, आणि सगळ्यांचे तुमच्याकडनं पण तेच दृष्टिकोन असतो. MBA झालाय सो त्याचं लँग्वेजवर कमांड असेल, त्याच्या पर्सनॅलिटीमध्ये ग्रेस असेल, राईट, त्याची कम्युनिकेशन एकदम भारी असेल. ही ऑटोमॅटिकली एक्सपेक्टेशन आहे मार्केटमध्ये. मग त्याला काय करायचंय, तुमची व्होकॅब्लरी वाढवा, तुमची इंग्लिश बोलायची डेली प्रॅक्टिस सुरू ठेवा आणि तुमच्या प्रोनाउन्सिएशन्सवर काम करा. का नाही 3 वर्षात डेव्हलप होणार मला सांगा, का नाही होणार. रोज 1 तास 1.5 तास जरी तुम्ही ह्या गोष्टींना दिला तरी सुद्धा द वे यू आर टुडे, यू आर गोइंग टू डेव्हलप बाय एंड ऑफ युअर कोर्स. यू आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट बाय एंड ऑफ युअर कोर्स. ओनली व्हॉट इज रिक्वायर्ड, कन्सिस्टन्सी, डिटर्मिनेशन पाहिजे. मला करायचं, मी एवढ्या कोर्सला ऍडमिशन घेतलीये का, तर माझ्यात काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट आणायला, का माझ्याकडे खूप झाले होते म्हणून आपलं दिले असं नाही ना. मला काहीतरी बनायचंय. आणि जर पर्सनॅलिटीमध्ये, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही ज्या गावचे आहात, एव्हरीबडी इज नॉट फ्रॉम पुणे, सो दोज आर कमिंग फ्रॉम आउटस्कट्स ऑफ पुणे. इमॅजिन तुम्ही जर एंटायर ट्रान्सफॉर्मेशन दाखवलं तर पीपल विल स्टार्ट ट्रस्टिंग की हा बाबा असे कोर्सेस केल्यावरती तुमच्यात इन अँड आउट ट्रान्सफॉर्मेशन झालंय.
कसा होता आणि कसा झाला हा, right? So look at that picture, keep that goal in front of you, so that goal will push you to do everyday these things. हे खूप सिंपल आहे. विमेन, वुमन म्हणतात लोक, वुमन, राईट? त्याला विमेन म्हणतात. आणि विमेन हे प्लुरल फॉर्म आहे, वुमन हा सिंग्युलर फॉर्म आहे. कम्फर्टेबल, कम्फर्टेबल, राईट? हे प्रोनाउन्सिएशनचे खूप सारे वर्ड्स आहेत ना, युट्यूबवर अवेलेबल आहेत. जस्ट मजा म्हणून पण तुम्ही बोलू शकता. मीच बघा किती घेतले. ओके, हा थर्ड सांगा बरं, हे हायलाइट केलाय तो. Dengue. Anybody else? Anybody has? Dengue. Yes. Anybody has मेडिकल आहे कोणाचं घरी, म्हणजे डॉक्टर आहे किंवा हे आहे असं बॅकग्राऊंड आहे? Yes. Me. Okay, so what has been it pronounced? Have you heard it? It's dengue. Okay. Anybody else? Okay, those who said, please sit quiet. Who was that? Finny? You were there? Yeah, ma'am. I was. Okay. Yes. आपल्या इथे म्हणजे मी 99% डॉक्टरांना पण हे प्रोनाउन्स करताना डेंग्यू ऐकलं. डेंग्यू झालाय त्याला, डेंग्यू झालाय त्याला. इट इज नॉट डेंग्यू, इट इज डेंगी. DENGEE. त्याचं प्रोनाउन्सिएशन DENGEE होतं, डेंगी. इट इज नॉट डेंग्यू, इट इज डेंगी. यू सायलेंट होतो त्याच्यामध्ये. सो इट इज डेंगी. सो करेक्ट युअरसेल्फ. आता डेंगी वर्ड खूप कॉमनली आपण वापरतो, त्याला झालाय, याला झालाय, याला झालाय. नाउ करेक्ट युअरसेल्फ. आणि लगेच करेक्शन्स होणार नाहीत. इनिशियली यू विल यूज द सेम रॉंग वर्ड, बट व्हॉट इज एक्सपेक्टेड, इमिडिएटली करेक्ट इट. Correct it in the next moment. Then you are training your brain to remember that in a correct way. ठीक आहे? इंग्लिश शिकणं म्हणजे ब्रेनला ट्रेन करणं, हे लक्षात ठेवा. कोणी रात्रीतनं इंग्लिश शिकणार नाही, कोणी रात्रीतनं कम्युनिकेशन मध्ये एक्सपर्ट होणार नाहीये. तुम्ही जितकं तुमच्या ब्रेनला ट्रेन करणार आहे, तितकं ते ब्रेन तुम्हाला तसं आउटपुट देणार आहे. Remember this. So this training process has to be started right now. Then you will get the results by end of your course. आणि गॅरंटेड रिझल्ट येतात, गॅरंटेड. फक्त कन्सिस्टन्सी पाहिजे, रोज करायचं न चुकता. आपण जेवतो ना त्या दिवशी तसं रोज आठवणीने हे पण करायचं. नंतर हा खालचा ॲस्मा, अस्थमा नाही, ॲस्मा. अनियन, ऑनियन नाही, अनियन. पास्ता, right? Opposite, finance, debts, pizza, ball. हे काय? हे तर आवडीचं असेल बऱ्याच जणांचं. Anybody knows correct pronunciation of this? It's mojito. Mojito. I don't drink, but I don't drink. Finny, you are Mama, caught. seriously don't drink. You both are caught now, right? This is the only person knows who have tried it earlier. No, ma'am, I don't drink, I don't smoke, I don't do anything. I just know the pronunciation. That's it. So, what is your advertising yourself that you are very genuine candidate available here now? No, I'm just clearing it out. Okay. So, fun apart. It is correct. It is pronounced as mojito. ओके, ते मोजिटो दिसते ना, मोजिटो. सो ते एक त्याचे दोन्ही व्हर्जन्स असतात, व्हर्जिन पण असतं आणि विथ ड्रिंक्स पण असतं. सो दे बोथ व्हर्जन्स आर अवेलेबल इन द रेस्टॉरंट. सो इट इज सेड एज मोहितो. नंतर हे pronunciations and pronounce. So these are the, you can take lot of big list of the day-to-day words which you can try to pronounce it in the correct way. Okay, so हे pronunciations वरती काम करा. आणि घरात ना जमत असेल आता तर try to keep conversation of English so that you will develop that confidence of speaking in English. नहीं तो कितने सारे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश आता है, समझता है, लेकिन बोलने का डेयरिंग नहीं होता है. They are not able to speak because they don't have that environment. They are not getting that environment in a correct way. अगर घर में कोई नहीं है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो तो खुद मिरर के सामने बैठ के खुद से बात करो.
कोई भी एक टॉपिक लो और खुद से बात करो, इससे क्या हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कम्युनिकेशन का, राइट? सो कम्युनिकेशन के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। गेटिंग माई पॉइंट? सो जस्ट आई कंप्लीट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो हमारा ओरल कम्युनिकेशन पार्ट यहाँ खत्म हो जाएगा आज। सो एडवांटेज यही है कि गुड लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। ओके, सो व्हेन यू आर गुड एट ओरल कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन में हमेशा एक बात याद रखना, कम्युनिकेशन ओरल होता है, रिटन होता है और नॉन वर्बल होता है। तीनों चीजों से कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ओरल और रिटन में कब आपको ओरल ले जाना है और कब आपको रिटन में आना है, ये सेंसिबिलिटी हमें डेवलप करनी है। ओके, कब हमें रिटन का अडॉप्ट करना है और कब हमें ओरल कम्युनिकेशन करना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओरल कम्युनिकेशन में फायदा क्या होता कि डाउट्स लगेज क्लियर होता। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, बिकॉज द पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, योर डाउट्स आर क्लियर। डिलीवरिंग सेंसिटिव टॉपिक्स, लाइक किसी को अगर जॉब से निकालना है तो उसको अगर आप हाथ में लेटर दे देते हो कि तुझे निकाला गया है, तो उसको शॉक जोर से लगेगा। इंस्टेड, इफ यू आर सिटिंग क्रिएटिंग अ बैकग्राउंड देन ट्राइंग टू डिस्क्लोज द न्यूज, तो उसको शॉक थोड़ा कम लगेगा, राइट? तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के लिए आपको ओरल कम्युनिकेशन ही लेना होता है। इमीडिएट फीडबैक, जब भी आपको फीडबैक देना है, इमीडिएटली देना है, तो यू हैव टू अडॉप्ट फॉर ओरल कम्युनिकेशन। डोंट राइट ऑन पेपर एंड गिव इट टू समवन, इट विल नॉट मेक इम्पैक्ट। इट रिड्यूसेस योर टाइम, बिकॉज सामने होता है, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उधर के उधर सब क्लियर होके आपका काम फटाक से हो जाता है। इट सेव्स मनी, बिकॉज उसमें पेपर नहीं लगता है, पेन नहीं लगता है, सो इट सेव्स योर मनी। हेल्प टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट किससे डेवलप होता है पता है? आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। जब भी आप कुछ बात करते हो, आई कॉन्टेक्ट देते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये चीजें सामने वाले को कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ भाई, इस बंदे पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, राइट? सो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। बेस्ट चॉइस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। झगड़े हुए तो आप क्या लेटर भेजोगे क्या एक दूसरे को? मतलब आप मैनेजर हो, दो लोगों में झगड़े हुए तो इसको एक लेटर देगा, उसको एक लेटर देगा क्या? इस टाइम तो आपको बैठ के ही सुलझाना पड़ेगा। एंड गुड फॉर परस्यूएसिव, मतलब जब आपको किसी चीज के लिए कन्विंस करना है किसी को, तब आपको ओरल कम्युनिकेशन ही लेना पड़ता है। दैट इज द ओनली वे यू हैव टू अडॉप्ट फॉर परसुएशन। तो सेल्स वाले लोग वगैरह रहते हैं ना, ये कन्विंस करते हैं, वो कभी भी सिर्फ रिटर्न पे नहीं जाते, आपके हाथ में पैम्पलेट्स नहीं रखते, सिर्फ ये आपके हाथ में उनका एडवर्टाइजमेंट का पेपर नहीं रखते कि ये पढ़ो और हमारी कार लेनी है तो लेके जाओ। ऐसे नहीं करते वो लोग, आपको 10 बार बोलेंगे, आपको परस्यूएसिव करेंगे, परस्यूएशन यूज करेंगे उनका कि क्यों अच्छी है, क्यों हमारी ये कार अच्छी है। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल बाय ओरल कम्युनिकेशन। एंड देन डिसएडवांटेजेस, अगर प्रूफ चाहिए आपको, आपने जो बोला है उसका प्रूफ नहीं रहता है जो रिटर्न में होता है, तो फ्यूचर में हमेशा याद रखना, आप कभी भी ईमेल लिखोगे, ईमेल राइटिंग करोगे, ऑफिस में करोगे, तो वो एज अ एविडेंस एक्ट होता है। किसी को कुछ लेटर में लिख के देते हो, किसी को कुछ पेपर पे लिख के देते हो, तो ये हमेशा एज अ प्रूफ रहता है। सो रिटन कम्युनिकेशन इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग एविडेंसेस। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर ऑर्गेनाइजेशन कि आप किस चीज के लिए ईमेल्स लिख रहे हो। ईमेल्स इज नॉट अ टाइम पास, बिकॉज वो आपने कभी किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आपने ईमेल लिखा, जैसे हमने पहली वाली एक्टिविटी में देखा था कि उसने वो ईमेल, उसकी अगर आपने भी डिलीट किया तो उसके पास रहता है वो सेंट में, रिसीव में आया हुआ, वो उसकी ईमेल आईडी में जाके आप डिलीट नहीं कर सकते, तो वो हमेशा आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। When to deliver to large mass, जब आपको एक लिमिटेड लोगों के सामने बोलना है तो आप ओरली बोल सकते हो, लेकिन अगर जोग्राफिकल जगह जाना, हर 4 जगह डिफरेंट जगह बोलना है तो पॉसिबल नहीं होता है, तब रिटन कम्युनिकेशन यूज होता है। एक्सप्लेन ह्यूज डेटा, अगर बहुत बड़ी लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कंपनी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इतने क्या आप लेके पढ़ोगे क्या, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक? उस टाइम क्या करते हैं लोग, वो आप ऑफर लेटर साइन करते हो ना, उसमें सारा लिखा हुआ रहता है और कोई पढ़ता नहीं है, सीधा साइन करता है। बाद में पता चलता है ये भी क्लॉज था, वो भी क्लॉज था, ये भी डाला हुआ था, वो भी डाला हुआ था,
क्योंकि उसके लिए रिटर्न वाला यूज करते. Sometimes could be time consuming because sometimes other person is not understanding, he takes time to respond, ऐसे भी होता है. Incomplete information can be transferred because आपके पास improper message है, वो आप दूसरे को भेज रहे हो through oral communication, तो वो improper message जा सकता है. Attentiveness and active listening is required. ये सबसे बड़ी requirement सामने वाली की होती है हमारी, कि वो हमारा सुन रहा है और ठीक से समझ रहा है. ये बहुत जरूरी होता है, तभी आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है. एंड लेस ऑथेंटिक देन रिटर्न, वही प्रूफ नहीं होता है इसलिए. एंड इजीली फॉरगॉटन, भूल गया, मुझे नहीं याद रहा, क्या कर सकते. आप बोले थे ये करना है, मुझे याद नहीं रहा, so that is a big problem. So these are the disadvantages or limitations to your oral communication. So we'll stop here today, and on Monday we'll continue with our non-verbal communication. Okay, so it is again an interesting topic. हेलो Fine. मैम. Yes. हेलो. हाँ मैम, प्रसाद मैट्रिक्स कॉलेज. Who is Hello. this? Yes sir. प्रसाद मैम. सब स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट है कि सब ने अपने वीडियो स्टार्ट करने हैं. हम Okay. जस्ट एक फोटो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं फॉर रिकॉर्ड पर्पस. Okay, okay, so please everybody start your videos. एंड मैम प्लीज स्क्रीन स्टॉप करते हैं शेयरिंग. हाँ करती हूँ. Sure. सब स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना वीडियो स्टार्ट करें. Quick. सर मेरे वीडियो में थोड़ा इशू है, चलेगा ना? यस सर. यस मैम, नो इशू. Okay, okay. प्रणव. Yes, ma'am. Just जल्दी जल्दी हाँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का Yes, टाइम हो yes. चुका है ऑलरेडी. Sorry, I extended little bit, sir. नो मैम, नो इशू. प्लीज गाइस. Reshma, Fini, on your videos, Pranav. Hello, yes, sir. यस मैम, डन मैम. Okay, thank you, sir. ओके, थैंक यू ऑल. Okay, so good to see your faces, everybody. Happy to see you all. Right? So Monday I'll try to come with my video on, so that you know, for non-verbal communication I need to show some expressions and show some movements, so that it will help you to understand. So I'll come up with the video, but you also keep your videos on, because that gives me a connectivity. Okay, मला असं connected वाटतं मग थोडंसं student सोबत. Fine. Okay then, see you all on Monday. Have a nice weekend and take care everybody. Bye. Thank you, ma'am. बाय मैम. यस, थैंक यू. Thank you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वैभव सर, प्लीज क्लोज. Okay.